Hello students, welcome to our next video. This video is for class 9 students and we are in chapter 7 named triangles. So in our last video we learned some of the two theorem regarding isosceles triangle, and now we will solve some of the questions on this isosceles triangle theorem and congruence rule. So this is my first question. Here it is given: E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC. You can see from the figure E and F are the midpoint of AB and AC respectively. मतलब E is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC. Okay, of equal sides AB and AC. Equal sides मतलब AB is equal to AC. So we have to show that BF is equal to CE. BF मतलब that line drawn is equal to CE. तो हमें गिवन क्या दिया गया है? E and F are the midpoints of AB and AC, and again AB is equal to AC. Okay, and we have to prove. To prove में BF is equal to CF. So in the figure it's given AB is equal to AC. Now if I draw AB, half AB, both side अगर मैं half कर लूँ, it will half AC. That implies half AB के बदले मैं AE डाल सकती हूँ, half AC के बदले मैं AF डाल सकती हूँ, क्योंकि E and F are the midpoints. So this is AE is equal to AF. That is equation 1, suppose. Or you don't need to mention the equation. Let's remove it. Okay, next, now to prove BF is equal to CE, let's take the triangles ABF and ACE. In triangle ABF and triangle ACE we have, हमें given क्या है? AB is equal to AC. ये given point है हमारा, और हमें अभी ये भी मिल गया AE is equal to AF, बट क्योंकि हमने ABF पहले लिया हुआ है, सो AF साइड को पहले लेते हैं. AF is equal to AE. AF is equal to AE. ये हमने प्रूफ किया अभी. देन और क्या बच गया? एंगल A. एंगल A is common to both. So according to side angle side rule, look at the side angle and side. Okay, सो एस के हिसाब से देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई ऑन कौन से रूल पे? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल में. ठीक है, दैट इम्प्लाइज अभी CPCT के अंडर बाकी सारा का सारा साइड जो है वो भी इक्वल हो जाएगा. दैट मीन्स BF इज इक्वल टू CE नाउ. ओके, सो BF is equal to CE according to CPCT. It's proved. This is the solution of this question. Now come to another question. This question, look at this figure is given for this question. Read the question. Triangle ABC is an isosceles triangle. Now ABC is an isosceles triangle where AB is equal to AC. Side BA is produced to D, मतलब BA को extend किया गया है D तक, such that किस तरह से? ताकि AD is equal to AC. Okay, now you have to prove BCD is a right angle triangle. BCD एक right angle triangle है, ये हमें proof करना है. ठीक है, so here I have written, given in the triangle ABC, AB is equal to AC. B is extended to D such that AC is equal to AD. ओके, ना प्रूफ करना है BCD is equal to 90 डिग्री. प्रूफ कैसे करें? सो इन ट्रायंगल ABC में क्या क्या गिवन है? AB is equal to AC. दैट इम्प्लाइज अगर AB is equal to AC हुआ तो उनके अपोजिट साइड्स जो हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे. दैट इज ACB is equal to ABC. ACB is equal to एंगल ABC. अगेन look at this triangle ADC triangle में, in triangle ADC, AD is equal to AC. AD is equal to AC. That implies उनके जो सामने जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे. सो AD के सामने ये वाला है, सो ACD will be ADC. So ACD will be equal to ADC angle. So now in triangle, ये टोटल होल ट्रायंगल को ले लेते हैं. इन ट्रायंगल DBC, कौन कौन से एंगल? DBC एंगल मतलब ये एंगल, ये टोटल एंगल मिलकर 180 डिग्री होंगे. सो BDC
एंड प्लस डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। दैट इम्प्लाइज अभी डी बी सी को हम वैसे ही लिखते हैं एंड बी डी सी को भी वैसे लिखते हैं, प्लस डी सी बी। अच्छा, डी सी बी के बदले हम इसे ए सी बी प्लस ए सी डी कर सकते हैं, ए सी बी प्लस ए सी डी। ना उसके बाद डी बी सी के बदले डी बी सी ए बी सी जो है, लुक एट दिस, ए बी सी जो है डी बी सी भी वही है, ठीक है। सो हम ए बी सी के बदले या फिर डी बी सी के बदले ए बी सी इक्वल है। सो ए बी सी जो है, ए बी सी किसके साथ इक्वल है? ए सी बी के साथ। तो आई कैन राइट ए सी बी इंस्टेड ऑफ डी बी सी। अगेन बी डी सी कौन सा है? बी डी सी मतलब ए डी सी, एंड वी हैव ए डी सी इक्वल टू ए सी डी। So we can write ACD plus again ACB and ACD is equal to 180 degree. So now you can see ACB, 2 ACB, 2 ACB and ACD, 2 ACD. So ACB 2 ACB plus मैंने 2 को कॉमन ले लिया है and ACD is equal to 180 degree. That implies ACB plus ACD is equal to 180 degree divided by 2 is equal to 90 degree, and that implies ACB and ACD मिलकर कौन सा एंगल बनते हैं? BCD. So BCD एंगल is equal to 90 degree, जो हमें प्रूफ करना था, यह भी प्रूफ हो गया, ठीक है। Now let's see another question. So this is another question, and let's read the question. In an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisectors of B, and let's draw the figure first. The isosceles triangle ABC के बारे में बताया गया है, ABC, where AB is equal to AC, AB is equal to AC, right? The bisector of angle B का bisector and C का जो bisector है वो दोनों कहाँ पे मिलते हैं? Intersect each other at point O. Join A to O, ठीक है। So that OB is equal to OC, OB is equal to OC, AO bisect angle A. So जो given है और क्या प्रूफ करना है, let me write this. So given and to proof मैंने लिख लिया है अभी तक। In triangle ABC, AB is equal to AC, OB and OC are bisector of angle B and angle C. That means ये B एंगल को इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, C एंगल को OC इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। So AO is joined. नाउ टू प्रूफ क्या करना है हमें? ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हमें प्रूफ करना है। सो पहले इसी फिगर से समझ लो, उसके बाद हम लिख लेंगे। नाउ वी हैव गिवन विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के साथ इक्वल है, दैट मीन्स उनके अपोजिट में जो साइड है वो दोनों भी इक्वल होंगे। सो ये इज इक्वल टू ये है, this angle total B angle is equal to C angle. So now if I will half them, if I will both side में half कर लेंगे तो half of B is equal to half of C. half of B मतलब this is equal to this angle. अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो उनके अपोजिट में जो साइड है ये दोनों ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स हमारा OC इज इक्वल टू OB हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स राइट दिस, ओके। सो इन द फिगर वी आर गिवन AB is equal to AC. That implies उनके साइड में जो एंगल्स हैं ACB is equal to ABC एंगल। रीज़न आपको लिखना है क्यों है, ये आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। सो नाउ AC B इज इक्वल टू ABC, ओके, बोथ साइड में हाफ मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ ABC, दैट इम्प्लाइज हाफ AC के बदले हम लिख सकते हैं, हाफ ACB के बदले हम लिख सकते हैं OCB एंगल इज इक्वल टू, इस तरह से हाफ ABC के बदले हम लिख सकते हैं OBC, दैट इम्प्लाइज OCB मतलब ये, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है? OBC का मतलब ये, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है? OC, दैट इम्प्लाइज OB इज इक्वल टू OC। ये हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट वन, ओके। नाउ जम्प टू सेकेंड वन। सो सेकेंड वन में प्रूफ करने के लिए दिया गया है कि ये जो AO ड्रॉ किया है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये प्रूफ करना है, ठीक है। सो हम लेते हैं ट्रायंगल BAO
एंड CAO, या फिर कहीं से भी शुरू करो, OAB OAC. इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC, राइट. लुक एट दिस, हमें गिवन है AB इज इक्वल टू AC, हमने अभी प्रूफ किया OB इज इक्वल टू OC, एंड मेरा जो AO है वो साइड कॉमन है. दैट मीन साइड 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 के तहत ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकता है. सो AB इज इक्वल टू AC, दैट्स गिवन, एंड OB इज इक्वल टू OC, वी हैव प्रूव्ड, अभी प्रूफ किया है, एंड OA जो है वो कॉमन है. ठीक है. सो दैट इम्प्लाइज ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OAC, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के हिसाब से. यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस रूल या फिर क्राइटेरिया लिखना है आपको. सो दैट मीन्स CPCT के अंडर बाकी के एंगल्स जो हैं या फिर साइड्स जो हैं करस्पॉन्डिंग वो इक्वल हो जाएंगे. दैट मीन्स OAB इज इक्वल टू OAC. दैट इम्प्लाइज OAB एंगल इज इक्वल टू OAC एंगल. दैट इम्प्लाइज OA बाइसेक्स एंगल A. यह अभी प्रूव्ड हो गया. ठीक है. सो इस तरह से आप कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल के थ्योरम्स को यूज़ करके ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू.